جی پلیز دوست مجھے تھوڑی سی کنفیوژن لگی آپ کے بیسک کنسیپٹس کے حوالے سے. پہلا کنسیپٹ جو ہے وہ اگین ریاست کے حوالے سے ہی کچھ کنفیوزڈ ہے. آپ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں گورنمنٹ اور اس کے اداروں کو ریاست اور اس کے اداروں کے ساتھ, اور اس وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. سو وی آر ناٹ fighting against the state, we are fighting against the government and its institution including establishment. That is government institute basically. ہم نے اسے قانونی طور پر آج کل ریاستی بنا دیا, otherwise that's a government institute. تو وہاں پر آپ نے انڈین نیریٹو میں بھی اس کو گورنمنٹ کو گڈمٹ کر دیا وتھ اسٹیٹ, اور یہاں پر بھی وہی کر دیا. انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں. The basic concepts of being a student of political science, you are the teacher of political science, but being also being teacher of political science as well. تو basic concept کو good ہوگا. Number 2, Cold War کو conceptually دیکھا جائے گا تو there's a Cold War between two super powers, وہ economic super powers and political super powers ہیں. آپ کہیں فیکچوئل کہیں پر وہ ہٹ گئے. یہ ڈاکومنٹری کے بعد 2 سوال, ایک آپ سے ریلیٹڈ اور ایک آپ سے. آپ پہلے اسی کو ٹھیک کرنا تھوڑا سا نہیں ٹھیک کرنا ہے کہ آپ نے پہلی بات جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کو آپ علیحدہ کرتے ہیں یہ برجوا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ لبرل جو سوشل سائنسز یا پولیٹیکل سائنس کا کنسیپٹ ہے. ہماری نزدیک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کلاس اسٹیٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ایک کلاس کریکٹر ہوتا ہے, اسٹیٹ کا ایک کلاس کریکٹر ہوتا ہے. کن طبقوں کو وہ سرو کرتی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ ایسے ٹرمپ کی علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے کیپٹلسٹ کو علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بظاہر ایک آرٹیفیشیل سیپریشن ہے جو لبرلزم کرتا ہے. ہم ایسے نہیں کرتے, لیکن آپ اگلی بات کریں, کوشچن آتا ہے. ایک تو ہم کا بھی جواب ہمیں دینا پڑے گا. ہم کون ہے مارکسسٹ, کوئی بھی مارکسسٹ اس کے کلاسیکل مارکسسٹ تو کہتے ہیں کہ مسلح افراد کے جتھے کو ریاست مارکس کی لائن نہیں ہے. یہی ڈیفینیشن ہے مارکس کی لائن. if there is no Mujahid then مارکس کی لائن ہے bourgeois state is the collective committee of the bourgeoisie. یہ مارکس کی لائن. so let me come to the question please. Yes. پہلا کوشچن تو سر آپ سے ہی ہے, عمر صاحب سے, کہ آپ نے نیو مارکسسٹ کی ویسٹرن جو کنڈیشننگ ہے وہ یہاں پر لاگو کرنے کے حوالے سے بات کی, کرامچی وغیرہ کی بات کی. Isn't it the same thing جو پہلے ہمارے آرتھوڈاکس مارکسسٹ کر رہے تھے, انہوں نے سیم فلاسفی وہاں سے رشیا وغیرہ سے اٹھائی اور یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی, اینڈ یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود دا پاکستانی سسٹم, اور وہاں سے وہی ایک اٹھا کے اس کو اپلائی یہاں پر کر دیا. کانٹراڈکٹو ڈیٹ کہ یہاں پر کیا صورت حال ہے. ایک تو یہ سوال آپ سے ہے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس میں درجہ بندی ابھی تک نہیں ہمیں بتا پائے کہ درجہ بندی ہے کیا اس وقت, عالمی درجہ بندی کیا ہے. آپ رہے ہیں چائنا تک اور صرف امریکہ تک. نا درجہ بندی کیا تھی, اور اس درجہ بندی کے اندر آئی ہیو اے کوشچن جو ایڈریس کریں. سب بندی ہمارا درجہ سب بندی کون کدھر ہے اس کا آپ نے بتایا نہیں کہ کون کدھر ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو آپ مجھے اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ کیونکہ پاکستان کی ساری اکانومی بیس کر رہی ہے یورو امریکن ٹریڈ کے ساتھ, جبکہ ملیٹریلی وی آر ود چائنا, کیونکہ ہمارا سارا ملٹری آج کل 60-70% اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں کب جو ہے وہ پاکستان وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو گو ان دیٹ چائنیز بلاک, بیکاز ابھی تو نہیں ہے, کیونکہ سارا ہماری جو اکانومی ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن یورو امریکن بیسیکلی ٹریڈنگ. تو اس حوالے سے ضرور جواب دیں. میں بس بہت چھوٹا سا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اپنے تاریخ میں زیادہ میں جا نہیں سکا, لیکن بنیادی فرق ہی یہ ہے ہمارا, جس کو عظیم صاحب نے تھرڈ ورلڈ مارکسزم کہا, اور تھرڈ ورلڈ مارکسزم سے ہم مارکسزم لیننزم ماؤزم کی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, اس میں اور ویسٹرن مارکسزم میں اور آرتھوڈاکس مارکسزم تینوں میں نے فرق کیا. تو میرا فرض ہے آپ کو بتانا فرق ہے کیا. آپ کی بات درست ہے کہ وہ وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا رہے ہیں, لیکن وہاں سے اٹھا کے کس چیز کو یہاں پہ لگا رہے ہیں فرق یہ ہے. کوئی بھی آئیڈیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کوئی برائی نہیں. آئیڈیاز انسانیت کے ہوتے ہیں, کسی ایک خطے یا ملک کی ملکیت نہیں ہے. تو لہٰذا میں بھی مارکسسٹ ہوں, میں مارکسسٹ لیننسٹ ماؤسٹ ہوں. ماؤسٹ تک آنے سے پہلے مجھے مارکسسٹ بننا پڑتا ہے, پھر مارکسسٹ لیننسٹ بننا پڑتا ہے, پھر ماؤسٹ بنتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں لینن کی نفی کر کے نہیں آ رہا, مارکس کی نفی کر کے نہیں آ رہا, اور ماؤ کی کرٹیک کر کے یہاں تک پہنچ رہا ہوں.
माओ ने भी जो हर चीज़ लिखी वो हर पे आखिर नहीं है। अब फर्क क्या, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म पे हमारी क्रिटिक है कि उनका जो डायलेक्टिक्स है, उनका जो जदलियात का फलसफा है, और ख़ास तौर पे उनका जो तारीख़ी मादियत का फलसफा है, वो यूरोप की कंडीशंस में डेवलप हुआ कि यूरोप में पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया, अब सोशलिज्म आएगा। लिहाजा वो उसको एज इट इज़ मैकेनिकी अंदाज में यहाँ उठा के लगाते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह एक से दूसरी चीज़ और दूसरी से तीसरी आएगी। ये समझे बगैर कि यहाँ के मखसूस हालात में शायद जागीरदारी की नौयत और है, शायद साम्राज्य की वजह से हम उस तरह का सरमायादाराना मुल्क बन नहीं सके, हमें गुमाश्ता सरमायादार मुल्क बन गए जो उनके सरमायादारों पे डिपेंडेंट है। तो लिहाजा इसलिए उसको ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट कह रहे हैं। वेस्टर्न मार्क्सिस्ट से भी हमारा ये इख्तिलाफी राय है कि वेस्टर्न मार्क्सिज्म एक लड़ाई से भाग चुका है, वो लड़ने के अलावा हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार है, इलेक्शन, कल्चरल पॉलिटिक्स, लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, डिस्कोर्स की पॉलिटिक्स, मगर लड़ाई की तरफ ना हमें लेके जाना। दूसरा हमारा उससे ये इख्तिलाफ है कि वेस्ट में जो आज की सोशल मूवमेंट्स है, हमारा ख्याल है वेस्टर्न मार्क्सिज्म वेस्ट में भी फेल हो रहा है। ऐसा नहीं है वहाँ कामयाब है यहाँ फेल होगा, वहाँ हम उसको फेल होता हुआ लाइव देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने इस वक्त ट्रम्प के अमेरिका में। अब उसके बरक्स अब आपका तीसरी बात कि क्या फिर हम भी यही नहीं कर रहे कि उठा के वहीं से कोई चीज़ लगा रहे हैं। खैर हम यूरोप से तो नहीं, ज़्यादातर आप हमें कह सकते हैं हम चीन को उठा के यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन हम मैं आपको बताता हूँ मजे की बात है, चीन को भी उठा के नहीं लगा रहे, हम तो चीन की क्रिटिक किए बैठे हैं यहाँ पे। हम कह रहे हैं, और माओइज्म की अगर बुनियादी मैं आपको डेफिनेशन दूँ, थर्ड वर्ल्ड मार्क्सिज्म से निकलने वाली तहरीकों की आपको बुनियादी डेफिनेशन दूँ, तो इनका इख्तिलाफ राय ही 68 के बाद पूरी दुनिया की आलमी सोवियत नवाज तहरीक से ये था कि हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ के मखसूस हालात में उसका ठोस तज्जिया करके वहाँ पे ठोस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इसको कहते हैं कॉन्क्रीट एनालिसिस ऑफ कॉन्क्रीट कंडीशंस। तो लिहाजा माओइज्म आपकी कॉन्क्रीट कंडीशंस में यहाँ की तबकाती नौयत को, यहाँ के कबाइल को, यहाँ की ज़ातों को समझे बगैर यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसलिए आपने देखा होगा हमने कहीं नहीं कहा कि हमारे पास पॉलिटिकल प्रोग्राम मौजूद है, ये 6 चीज़ें करो इनकलाब आएगा, नहीं, हम नहीं बता सकते आपको। यहाँ की जो तहरीक उभरेगी, जो सही मायनों में मजदूर किसान तहरीक होगी, उसका अमल बताएगा कि वो क्या होगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले मजदूर किसान से जुड़ना पड़ेगा। और ऑर्थोडॉक्स और न्यू लेफ्ट की बरक्स हमें अवाम को सही मायनों में, दुरुस्त मायनों में अपना उस्ताद मानना होगा, ना कि टगे जो बेवकूफ़ हैं और उनको शऊर देना हमारा काम है। हमारा हरगिज़ ये काम नहीं है, वहाँ हमारे उस्ताद हैं और उनको फॉलो करना, उनसे सीखना और उनकी इनकलाबी तहरीक को ऑर्गेनाइज करना एक मुसल्ला पार्टी की सूरत में हमारा असल काम है। जी अल्फान साहब। जी अजीम साहब ने भी जवाब दिया। अच्छा सरबंदी वाला आपने जो बताया, देखें जो हेजमनी, ये नॉन हेजमोनिक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। हेजमनी होती जब एक बड़ी पावर होती है और बाकी पावर्स को वो अपनी कंट्राडिक्टरी यूनिटी में इकट्ठा कर लेती है, हेजमोनिक ब्लॉक कहते हैं, अजारादारी। वो अजारादारी बड़ी ज़बरदस्ती आपको नज़र आ रही थी, जहाँ अमेरिका इशारा करता था। अब ये है कि वो कम है, वो कंट्राडिक्ट, उसके अंदर इख्तिलाफात आ चुके हैं, इसीलिए इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरीज बढ़ गए हैं। तो सरबंदी कोई नहीं है, देखना पड़ेगा। मैंने इसलिए कहा कि कौन किधर बैठता है, क्या करता है। आपने देखा होगा हर रोज़ कोई डील हो रही है, वो उसको डील का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग गया ट्रम्प। कौन कहाँ बैठेगा, कौन किसका साथ देगा, वी आर टू लुक एट, लेकिन कंटूर्स देखे जा सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि पाकिस्तान कब जाएगा, ये बड़ा एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, अब आपने गौर किया होगा कि हम जो क्लासिकल सेंस में डिपेंडेंसी थी वेस्ट की तरफ पाकिस्तान की, तो हम देखते थे कि इकनॉमिक डिपेंडेंसी है, तो पॉलिटिकल डिपेंडेंसी भी होती थी और मिलिट्री की डिपेंडेंसी भी होती थी और कल्चरल डिपेंडेंसी भी होती थी। अच्छा, चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग मैं स्टडी पिछले दिनों कर रहा था कि पाकिस्तान में तो उसके ताल्लुकात को देख रहा था, एक आर्टिकल लिख रहा था, मैं बड़ा हैरान था कि चीन इकनॉमिक एक्टिविटी को सेपरेट रख रहे हैं, वो सीपैक के थ्रू थी, और उसके अंदर मिलिट्री का शेयर उस तरीके से नहीं आपने गौर किया, वो प्राइवेट। अच्छा, मिलिट्री उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग पड़ी हुई थी। पाकिस्तान की 80% हार्डवेयर, 81% अभी उस पर है, वो कर रहा था और उसको ज़रूरत थी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, पॉलिटिकली वो किसके साथ है, कौन सी पार्टी के साथ है, वो बिल्कुल ही आपने देखा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी नेगोशिएट करता है, सिर्फ मिलिट्री के साथ नहीं करता। जमात इस्लामी तक, अच्छा, वो एक अपना उसका है। तो ये तीनों मैं देख रहा था कि इंस्टेंसेस ऑफ सोशल रोल अलग-अलग पड़े, उनको मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या इनको अलग-अलग डील किया जा सकता है। तो चाइना बुनियादी तौर पर बिल्कुल इस वाले से मार खा गया। अब यही जगह थी
जब सी पैक चल रहा था, तीसरा साल था, पूरा हाल चाइना के खिलाफ बातें कर रहा था। सिर्फ 2-3 साल सी पैक चला था, 14 से 17 में, आपको याद होगा जी यार, लोग लड़ रहे थे। यस यस, उसकी वजह थी मैं भी ग्राउंड पे काम कर रहा था और बैठा करता, लेकिन सिर्फ ये हुआ कि इमरान खान के आने से वो सी पैक स्लो हुआ और उसकी सॉलिड रीज़न नज़र आती है। सी पैक अथॉरिटी मिलिट्री ने स्लो किया और इमरान खान जाहिर है उसने खेला साथ। फिर अब उन्होंने सी पैक को स्लो किया। सी पैक दोबारा कैसे शुरू होगा आपने देखा होगा कि नहीं शुरू हुआ। ये कि जो आपके पहले फेज़ के पैसे लग के पेमेंट होनी थी वो भी नहीं हुई, लिहाजा वो आपके लोन भी बढ़ गया। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसको बस देखने की कोशिश कर रहा था कि इमरान खान ने स्लो किया या नहीं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लिटरेचर है कि अमेरिका परेशान है, ठीक है, लेकिन अब जाहिर है हम लोग कोई डायरेक्ट तो हमें नहीं पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, हम तो तज्जिया करते हैं। तो अब हैरान कुन हद तक मैं हैरान हूँ। आपने गौर किया होगा कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़के इंडिया के साथ अचानक ट्रम्प, और अब एक्साइटमेंट हमें चीन में नज़र नहीं आ रही। चीन में वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही, हालांकि चीन के साथ हमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसकी। और उसके बरक्स मुनीर वगैरह वहाँ गए, बड़ी नोबल प्राइज। तो ये है पाकिस्तान का। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो कल्चरली पूरे तरीके से वेस्टर्न। तो सबसे बड़ा डायलेमा चाइना के लिए ये है कि जब वो, और मेरा तो वो माइंडसेट चेंज करना एग्जैक्टली, यानी आप कह लें कि हमारा लीगल सिस्टम ही उन्हें सपोर्टिव नहीं है, वो अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो ये स्टे और ये वो डॉक्टर साहब इरफान साहब काफी देर से। जी मेरा बस दो सवालात हैं। एक तो ये कि क्या जब हम ट्रांजिशनल फेज़ जो है उसका तज्जिया करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार तक बरतानवी साम्राज्य से अमेरिकी साम्राज्य का सीट ऑफ पावर लेना ग्लोबल आर्डर के अंदर साम्राज्यी पावर की ताकत के तौर पे, उसमें हम अमेरिकी रियासत का जो रवैया है या अमेरिकी रियासत का जो तरीक़ाकार है पावर लेने का, अगर उसका तज्जिया हम करें कंपैरेटिव विद रिस्पेक्ट टू चाइना, 2014 से आपने कहा कि वो एस्पिरेशनल फेज़ में आया है, 2014 से 2025 तक एक डेकेड तो हमारे पास है, गो के कम टाइम फ्रेम है लेकिन एक अच्छा टाइम फ्रेम तो है जिसमें हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि ट्रांजिशन फेज़ के अंदर उभरती हुई साम्राज्यी ताकत का रवैया किस तरह का होता है। एक तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। दूसरा मुझे एक सवाल दोनों से है आपसे कि जो आपका जो फ्यूचर रेवोल्यूशनरी माओइस्ट प्रोजेक्ट का फ्यूचर इन विजनिंग ऑफ द साउथ एशिया है, उसके अंदर मुझे बाल्कनाइजेशंस की एस्पिरेशन ज़्यादा नज़र आ रही कि वो रीजनल बाल्कनाइजेशंस के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता हुआ या रीजनल बाल्कनाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करता हुआ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो नज़र आ रहा है। और साउथ एशिया की इंटीग्रेशन या साउथ एशिया की रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर उसका जो फोकस है या उस तरह के प्रोजेक्ट का फोकस जो है वो नज़र नहीं आता। जबकि इसके बरक्स जिसको हम बेसिकली बहुत तनकीद कर रहे हैं, सी पैक इज़ ए पार्ट ऑफ द वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट दैट इज़ BRI के बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि माओ का बेसिकली बंडोंग कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका ये आइडिया था। ये कोई डेंग का आइडिया नहीं था, ना शी जिनपिंग का आइडिया था। कि माओ के टाइम पे दैट इज़ बंडोंग कॉन्फ्रेंस में 1958 के अंदर ये बेसिकली आइडिया जो है वो मैच्योर होता है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो ज़्यादा खितों की इंटीग्रेशन के ऊपर तवज्जो दे रहा है एज़ कम्पेयर टू द बाल्कनाइजेशन, जो कि इम्पीरियलिस्ट प्रोसेस रहा है। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें कि कोल्ड वार के अंदर भी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रेटजी यही थी कि खितों को बाल्कनाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए। और अभी जो है वो भी उसकी कि अगर हमारे से सीट ऑफ पावर जाती भी है तो खिते इस तरह से बाल्कनाइजेशन हो जाए कि वो सर्वाइव ना कर सके। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? अच्छा, एक है आपने ट्रांजिशनल फेज वाला सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की राइज थी, तो अमेरिका 1776 से ऑनवर्ड 1823 में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की सपोर्ट करने लग गया था। उसे मॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो लिबरल सेंस में था। लिबरल सेंस से मुराद है कि हर
राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, वो लिबरल सेंस में इसलिए कि उसके अंदर क्लास कंटेंट नहीं था, फिर बाद में लेनिन के ज़माने में भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आता है, वो रियासत के क्लास कंटेंट को देखता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो मोनरो डॉक्ट्राइन बेसिकली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो इन्फ्लुएंस था अमेरिका का उसके लिए था कि यहाँ अब वेस्टर्न पावर जो है अपना जोर आजमाइना। तो एक तो ये ट्रांजिशन थी, और अमेरिका आपको पता ही लीग ऑफ नेशन का मेंबर भी नहीं बना था, और उसमें बाकायदा वो बैठा हुआ था लेकिन लीग ऑफ नेशन में, क्योंकि उसको तभी यूके का क्योंकि बोल रहा था गच्चे अमेरिका आगे बढ़े। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इनका कि चीन कर क्या रहा है आलमी पॉलिटिक्स के अंदर, सिर्फ मिलिट्री नहीं देखें या इकोनॉमिक ना देखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका किरदार है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि चीन को 1990 तक कहा जाता था कि लॉ टेकर या नॉर्म टेकर, यानी ये सिंपल जो लॉज बन रहे होते थे ले लेता था और अपने हिसाब से उनको चलाया करता था। लेकिन अब अगर आप देखें, हैरान होंगे आप कि जहाँ ट्रम्प प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है, जो मल्टीलैटरल सिस्टम है उसको चीन सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, चीन के इस वक्त अगर मैंने जो आप भी वहाँ जा गए होंगे, मैं भी उनसे मिला हूँ, मैं सिंगापुर में मिला हूँ प्रोफेसर से, क्लियरली हम जो पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें क्लियर नज़र आ रहा था। मैं जाके बात कर रहा था मार्जिनलाइज की, और चीन के जितने भी इंटेलेक्चुअल आए हुए थे और टॉप के लोग आए वो इंटरेस्टेड नहीं थे रेजिस्टेंस वगैरह में, ठीक है। उनका सारा जोर इस पर है कि हमने फलाना इंस्टीट्यूशन अमेरिका के मुकाबले में कैसे बनाना है, कंपटीशन लॉ के इंस्टीट्यूशन हमने अमेरिका के मुकाबले कैसे बनाने हैं, आर्बिट्रेशन के इंस्टीट्यूशन हमने कैपिटलिज्म को उनके जो है सपोर्ट करने के लिए। तो इन अ वे ट्रांजिशन स्टेज जो चाइना की नज़र आती है कि वो अपना शेयर और पाई जो है उसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। उसकी ग्रोथ जो है अभी तक पीसफुल है, उसकी ग्रोथ पीसफुल से स्लोली कन्फ्रंटेशनल होती जा रही है, और उसको उठाने की कोशिश जो है साम्राज्य करेगा ताइवान के अराउंड। लेकिन उसको बड़ी जंगें पड़ गई, जैसे अभी यूक्रेन वाली पड़ गई, यूक्रेन से मारो इसराइल वाली पड़ गई। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मैं महसूस करता हूँ कि ये जो वॉर है ये स्टेजेस में लड़ी जा रही है, यानी साम्राज्य से स्टेजेस में लड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है, मुझे ट्रांजिशन नज़र आ रही है। लेकिन ये ट्रांजिशन क्या है, एक सोशलिस्ट वर्ल्ड को इमेजिन करना है या एक इंटरपीरियड राइवलरी को मैं इमेजिन करूँ वगैरह, मुझे अभी उसके हवाले से मैंने ओपन एंडेड जवाब छोड़े। तो बहुत अच्छा सवाल आपने बाल्कनाइजेशन वाला किया, बिल्कुल सही आपने। इस वक्त जो जितनी भी मूवमेंट्स बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें नैरो नेशनलिज्म आ गया हुआ है, जो आपकी बात हुई उसकी वजह ये है कि पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो आपस में भी थोड़ा सा बात कर लेती, क्योंकि उनकी बुर्जुआजी उन्हें जोड़ रही थी। बुकली जोड़ता था GM सैयद से, उसको जोड़ता था क्योंकि वो नैब में इकट्ठे बैठे थे। अब चूंकि उनकी एलीट नाकाम हो गई तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जब मिडिल क्लास के हाथ में आई है तो मिडिल क्लास उसे जोड़ नहीं पाती, मिडिल क्लास उलट है लड़ती है, ठीक है ना, वो आपस में। इसलिए सिंधी नेशनल क्वेश्चन भी और बलोच नेशनल क्वेश्चन भी वो मिडिल क्लास, तो PTM इसकी पश्तून का मूवमेंट इसकी मिसाल है। पश्तून देखना नहीं चाहता, आप सिंधियों को भी, सिंधी पश्तून को नहीं देखना चाहते, अब तो बलोचियों और सिंधियों में भी आ। तो इसका मतलब है अगर इसको जोड़ सकता है तो वर्किंग क्लास का नैरेटिव, क्योंकि पहले नैप में एक एलीट नैरेटिव भी होता था, एक वर्किंग क्लास का नैरेटिव होता था, जिसकी वजह से दोनों गायब हो गए, लीड गायब हो गया, मिडिल क्लास रह गई। तो मुझे लगता है कि जैसे वर्किंग क्लास का नैरेटिव जो है इन मूवमेंट्स को जोड़ेगा जब हम, और यही हमारा फर्क है एडहॉक और रैंडम किस्म की सॉलिडारिटी करने का नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के साथ, और एक कोहेरेंट नेशनल लिबरेशन का प्रोग्राम देना तमाम नेशंस को साउथ एशिया की, क्योंकि हम समझते हैं ना इंडिया नेचुरल है ना पाकिस्तान नेचुरल है, ये मुख्तलिफ नेशंस को इकट्ठा करके एक नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है जो फेल हो चुका है। एक सोशलिस्ट साउथ एशिया, वर्किंग क्लास का साउथ एशिया एक पॉसिबिलिटी है जिसको हमें देखना। जी आखिरी सवाल डॉक्टर ताहा साहब का, ताज शबीर साहब का। मेरे सवाल दो चिट्टे, मेरे तीन आबिद साहब से भी सवाल है, हाँ अच्छा, उमर साहब से भी सही। आबिद साहब ने जो बात की सुनो यार, सुनो यार, आप इस तरह जी देखो टाइम ज़्यादा हो गया है जी डॉक्टर। आबिद साहब ने जो बात की कि तरक्की पसंद हमारे जो ये कहते हैं कि इसराइल एक तरक्की पसंद सोच वाली रियासत, मैं नहीं, तरक्की
तरक्की पसंद नहीं कहते, हाँ। मैं सेकुलर लिबरल का कह रहा हूँ। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ना वो सेकुलर लिबरल है ना वो तरक्की पसंद वो है। तरक्की पसंद उनको है। चार उनको देखो अकीदे के लिहाज से भाई एक बार सुन लेना, अकीदे के लिहाज से 4000 साल पुराना उनका अकीदा है। ईसाइयों ने उसे 2000 साल पहले रिजेक्ट कर दिया, मुसलमानों ने 1400 साल पहले रिजेक्ट कर दिया। ये तो अकीदा हो गया। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी उससे ये कम्युनिस्ट मुल्क हैं जो उनसे कहीं आगे निकल गए नेटो में, वो भी खत्म हो गया। ये तो आबिद साहब के उससे है मेरा। और उमर साहब से ये है कि ये माओइस्ट लेनिनिस्ट, ये मैंने सवाल पूछा था प्रोफेसर यूसुफ हसन से कि सर हमें मार्क्सिज्म की बजाय और यानी ये लेनिनिस्ट माओइस्ट की बजाय हम मार्क्सिज्म की बात करें तो फिर क्या है? कहता है नहीं, मार्क्सिज्म भी हमारा फलसफा नहीं है, हमारी वो मतलब नज़रिया नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है। हमारा जो मिशन है ना वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो लिखा है हमने उसको फॉलो करना है। तो मार्क्सिज्म में तो फलसफा है, हम फलसफा मजदूरों को कैसे पढ़ाएंगे समझाएंगे, वहीं उलझाने वाली बात है, क्लास रूमों में बैठ के बातें करने वाली बात है। तो हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और तबकाती जद्दोजहद की हमने बात करनी है। और दूसरी बात इंडिया की जो होती है ना तरक्की पसंद, जो कांग्रेस की आपने बात की, तरक्की पसंद सारे कांग्रेस के साथ थे और नेहरू ने हमेशा उनका साथ दिया। तो तरक्की पसंद तमीम का आखिर तक सज्जाद जहीर जब यहाँ से वापस दिया, पाकिस्तान निकाल दिया, नेहरू ने उसे फिर उसका साथ दिया, वो उसको प्रमोट की, उसकी हिमायत। अब ये तो हो गया आपका सवाल का जवाब देना। अब सैयद अजीम साहब से जो सवाल है मेरा चाइना के बारे में, कि चाइना के बारे में मैं तो समझता हूँ जैसे यमन ने अमेरिका को मार के भगाया, आइजनहावर और ट्रूमैन जो उनके 2 जहाज भगाए वहाँ से, कि आज के दौर में अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर, चाइना सुपर पावर है इस वक्त। और दूसरी जो बात है कि चाइना का एक ये सवाल है कि चाइना का और अमेरिका का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए कौन सा बेहतर है इनमें से, चाइना बेहतर है या अमेरिका बेहतर है? जी ना, पहली बात तो मेरी तरफ ही नहीं आए, आपने वो समझा गलत या सुना गलत। सबको पता है मैंने सेकुलर लिबरल का नाम दिया था, मैंने उसे वो सेकुलर लिबरल के हैं वो तो सरमायादाराना निज़ाम को सपोर्ट करते हैं और वो मुखालफत करते हैं हर तरक्की पसंद की। वो कहते हैं कि वो तरक्की की और तहजीब के वो नुमाइंदा है, उसके लंबरदार हैं इंसानी तहजीब के, तरक्की पसंद नहीं कहते, वो कहते हैं। जी जी, लिहाजा आपने वो गलत समझा उसके बारे में। जी आप बताएं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि आलमी सूरतों के तनाज़ुर में सियासी ऑलरेडी हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका और इसराइल की जंगी बुनियादी और समाजी मकासद क्या हैं, वो बुनियादी तौर पर मेरा मौजूद नहीं था, लेकिन उसके हवाले से थोड़ी डॉक्टर साहब ने जो बातें की उनका तकरीबन आ गया। आलमी समाज की बनावट की वजाहत क्या है, तो ये भी बहुत ब्रॉड सा क्वेश्चन है, लेकिन असल चीज़ है कि पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री को तबाह करने चाइना का क्या कितना किरदार है। तो मुझे वो शहजाद साहब याद आ गए जब हम लोग देख रहे थे 1999-2000 में, तो बाकी हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो थी इंडिकेटर्स बनाने की, ऑटो पार्ट्स बनाने की, वो चाइना की तजारत से उसी वक्त तबाह होना शुरू हो गई थी। और हमारे पास कोई प्लान नहीं था कि हमने ट्रेड करनी है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कैसे करना है वगैरह वगैरह, तो वो तो हो गया। दूसरा वाखान कॉरिडोर के हवाले से है कि उस पर इंडिया अपना जताता है, चाइना भी दावेदार है, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये वैसे मैंने एक दो दफ़ा तहकीक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वो उसी तरह है। लेकिन जाहिर है उसके हवाले से कोई नेगोशिएशन होगी सब के दरमियान, क्योंकि वो ट्रेड के हवाले से बहुत है। उसके अंदर से फिर हमें सड़क मिलती है जो अफगानिस्तान से 22 किलोमीटर ले जाती, 25 किलोमीटर का इलाका है। अगर वो अफगानिस्तान से ले लिया जाए, हो सकता है अफगानिस्तान से बेच दे और चाइना ले ले या कोई और। जी आप जी डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब। डॉक्टर साहब का सवाल था उमर साहब आप दे दें। उमर साहब का अलग सवाल था। हाँ, 2 सवाल। सर पहले सवाल का बड़ा अच्छा, थर्ड वर्ल्ड के लिए चीन है। बहुत सिंपल सर, उसका जवाब है कि बात अच्छी है कि हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, हाँ नजरियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपने याद रखना है मार्क्सिज्म मजहब नहीं है, मार्क्सिज्म मजहब नहीं है, मार्क्सिज्म एक जीता जागता मेथड है दुनिया के अंदर। और मार्क्सिज्म की बेस्ट डेफिनेशन है कॉमरेड एंगल्स देते हैं, कहते हैं कम्युनिज्म क्या है, तो कहते हैं कम्युनिज्म उन तमाम शराइत का मजमूआ है जो दुनिया के मजलूम तबकात की आज़ादी के लिए ज़रूरी है, हाँ, फॉर द लिबरेशन ऑफ ऑल ऑप्रेस्ड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सवाल सिंपल ये है कि सर दुनिया के हालात बदल रहे हैं,
तबकात की नौयत भी बदलती है, उसके अंदर प्रोडक्शन भी बदलती है, टेक्नोलॉजी भी बदलती है, समाजी हालात भी बदलते हैं। तो लिहाजा बाकियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि मार्क्स जो है वो फ़र्ज़ करें अभी पार्टी का फ़लसफ़ा नहीं दे पाता कि पार्टी कैसी होगी, कैसी बनेगी, तो लेनिन चाहिए समझने के लिए कि पार्टी कैसे बनानी है। और लेनिन क्यों पढ़ते हैं? इस वजह से नहीं कि लेनिन हमें ज़ाती तौर पर ज़्यादा पसंद है, इस वजह से कि उसकी प्रैक्टिस, उसके दिए हुए फ़लसफ़े को, जो सिर्फ उसका नहीं उसकी पूरी तहरीक का है, उसका नाम हम इस्तेमाल करें, उसमें बहुत लोग शामिल हैं, उस तहरीक का जो फ़लसफ़ा है वो कामयाब हुआ। तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म एक जीती जागती साइंस है जो कि दुनिया भर की मजलूम तबकात की तहरीक के अंदर अमल के ज़रिए अपने आप को वेरीफाई करती रहती है। तो जब भी नया फ़लसफ़ा आता है, वो जब वेरीफाई होकर सही साबित होता है तो हम उसको अपनाते हैं। हमारा ख्याल है कि आज 2025 में वो फ़लसफ़ा जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, वहाँ पे ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान जैसे नीम जागीर दराना, नीम नौबालियाती और गुमाश्ता सरमाया दराना ममालिक के अंदर उस फ़लसफ़े को अपनाने का मकसद है कि इन हालात और इन तज़ादात का मुकाबला करने के लिए उसको अपनाया जाए। और उसके लिए मार्क्स और लेनिन के बाद माओ के इजाफों को देखे बगैर वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लेनिन तक आना नाकाफ़ी है, क्योंकि लेनिन के बाद जो लड़ाई हुई वो हमें तीसरी दुनिया की आज़ादी के फ़लसफ़े तक पहुंचाती है, जो माओ के ज़रिए, फैनॉन के ज़रिए, दीगर हो ची मिन के ज़रिए हम हासिल करते हैं। लेकिन माओ ने क्योंकि उसको सिंथेसाइज़ किया, क्योंकि उसको मजमूए में इकट्ठा किया और उसको प्रैक्टिस में वेरीफाई किया, ये बाकी सारे भी हमारे उस्ताद हैं, लिहाजा हम उसको माओज़म कहते हैं और उसके बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। बाकी फ़लसफ़ों के अंदर जो बांट होती है, मेरे ख्याल में मैं इसको बुरी चीज़ नहीं समझता, क्योंकि इन फ़लसफ़ों के ज़रिए अवाम तक ले जाने से पता लगता है कि क्या चीज़ कामयाब होगी, और ये हमारे अंदर बहस है और ये बहुत अच्छी है, और इसका जवाब सिर्फ अमल से हासिल हो सकता है। जी आखिरी बात वो मुकाबला है मेरा सर। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, डॉक्टर उमर से। आपने एक दफ़ा लेक्चर के दौरान और जब सवाल का जवाब देते हुए मसल्ला जद्दोजहद की बात की, तो मुझे फील हुआ है कि आप आवाम के शऊर को इर्तिकाई मराहिल से गुजारने और जमहूरी जद्दोजहद से मायूस हो चुके हैं। और इससे मिलता जुलता छोटा सा और सवाल कि क्या जमहूरी क्या मसल्ला जद्दोजहद जो है वो तरक्की पसंदाना रवैया है? पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ा एक अजीब सा लगता है, ये कहते हैं प्लीज जी। हाँ सर, बहुत सिंपल है कि मायूस क्या होना है, हम देख चुके हैं बार बार जमहूरी जद्दोजहद का नतीजा। दूसरा, जो चीज़ हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं लाना चाह रहे कि वक्ती तौर पे कोई कवानीन बनवा लें जिससे मिनिमम वेज में इजाफा हो जाए। हमारे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो भी लड़ाई के बगैर मुमकिन नहीं है। हमने देख लिया कि भुट्टो अक्सरियत के साथ भी ज़मीन की तकसीम नहीं कर पाया, लिहाजा यहाँ पे लड़ाई ज़रूरी बन जाती है। लेकिन लड़ाई से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप सिर्फ ये ना समझें डूस वाली लड़ाई बहुत इकसाम की होती है। लड़ाई पढ़ाई में भी होती है, तलबा सियासत में भी होती है, ट्रेड यूनियन की भी होती है, किसानों की भी होती है, लिटरेचर, थिएटर, आर्ट और शायरी के ज़रिए भी होती है। मैं फॉर इंस्टेंस कहूँगा कि हमारे प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का बहुत सारा विरसा जो है, अवाम लड़ना चाह रही थी तो उसको दबा रहा था। जब पास जैसे साथी, संतरा मुदासी जैसे साथी जो थे वो कह रहे थे लड़ो, तो लिहाजा हमें उस विरसे को दोबारा से उजागर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात आपकी ये है कि जमहूरी जो तरक्की पसंद रवैया है, हाँ बिल्कुल सर, उससे ज़्यादा तरक्की पसंद क्या हो सकता है? लड़ाई के साथ दुनिया को बदलना। लेकिन नहीं, उसमें ज़रूरी है कि हमें लड़ाई इसलिए नहीं करते कि हमें लड़ने का शौक है, बिल्कुल नहीं है। हम लड़ाई से डरते हैं क्योंकि लड़ाई जान का ज़िया का बायस बनती है। हम डिफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन वो साथी जो समझते हैं, और ये मेरा ख्याल भगत सिंह ने कहा था कि वो साथी जो समझते हैं कि इस वक्त अगर लड़ाई नहीं हो रही दो ग्रुपों के दरमियान तो हम पीस की सूरत हाल में हैं, वो गलत है। हम कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर है, क्योंकि हमारे मजलूम तबकात रोज़ाना मर रहे हैं और जंग हम पे रोज़ाना मुसल्लत है। हमारे पास हक है अपना दिफा करने का, उसके खिलाफ लड़ने का, जैसे फ़लस्तीन में साथी कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में साथी कर रहे हैं, और एक दिन से इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी करेंगे। जी हमारा बहुत शुक्रिया आपका। एक ऐलान है कि हमारे दोस्त हैं अदरीस तबस्सुम साहब की किताब है मुहर्रकात तक़सीम हिंद। ये 11 जुलाई शाम 4:30 बजे कॉस्मोपॉलिटन क्लब में इसकी तकरीब है, अंजुमन के तहत, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसल्लफ़ीन के ही दे रहे हैं तमाम। तो सदारत इसकी कामरेड सही कर रहे हैं, तो इसमें आप बाकी मुकर्रमीन भी इसमें काफ़ी लंबी फहरिस्त है, तो आप दोस्त वहाँ तशरीफ़ लाइएगा। और एक बुरी खबर आपको देता जाऊँ कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त वो सीनियर तरीन जो हमारे तरक्की पसंद मार्क्सी दानिश्वर जो हैं, आबद हसन मंटो साहब, उनकी मिसेस जो है तस्नीम मंटो,
वो अफसाना निगार भी थी, वो इंतकाल कर गई हैं। तो आप दोस्त उनके घर भी जा सकते हैं, उनसे रब्ता और जनाजे का जो होता है दें। तो डॉक्टर साहब अभी उस हिस्से में है जहाँ साथी की बहुत जरूरत है, तो जरूर मिलिए मंटो साहब से। और मंटो साहब ने, सियार असलम साहब ने, डॉक्टर मुबशर असलम साहब ने, अजीम को पता है, जावेद शहीन ने, अहमद बशीर ने, सफ्तर मलक ने, ये हमीद अख्तर साहब ने, आइए रहमान साहब ने, ये हमारे वो बुजुर्ग थे, कई नाम मैं छोड़ गया हूँ, भूल गया हूँ। ये हमारे वो बुजुर्ग थे, हमारी ऊपर वाली नस्ल थी जिन्होंने इस फोरम को इसके रिवाइवल में बड़ा बड़ा साथ दिया। और मंटो साहब ने जहाँ कहा कि आपने आना है, वो इन टाइम आते थे। हमारे दोस्त काफ़ी लेट आए हैं, तो वो ये बुजुर्ग सीनियर नस्ल जो थी, 5 बजे का वक्त है तो 5 बजे से पहले आते थे। तो हम के फैमिली है, उनके बराबर के शरीक हैं, तो तशरीफ ले आए भी फोटो के लिए।